Today we'll start with the next part of hydrocarbon. The next part of the hydrocarbon is aromatic hydrocarbon. We have done with alkane, we have done alkene, we have done alkyne. Now hydrocarbon, the next part is what? Aromatic hydrocarbon. So what are aromatic hydrocarbon here? Benzene and all compounds benzene and all compounds that have structure and chemical properties resembling benzene are called aromatic compound. Benzene and all compound that have their structure and chemical properties are similar to benzene. मतलब जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर और जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की तरह है, उन कंपाउंड को हमें क्या बोलना है? एरोमेटिक. Benzene and all other compound who have their structure and their chemical properties are similar to benzene are called as a aromatic compound. I'll repeat again. Benzene and all other compound who are having their structure and properties similar to a benzene are called as a aromatic compound. We'll just take here some examples. Examples of aromatic compounds. Examples of aromatic compound. The first example here is benzene, CH3 is methyl. See, this is only benzene ring, so this is called as the benzene. Benzene ring has got methyl attached to it, so it is called as the methyl benzene, and very commonly it is known by a name also called as a toluene. मतलब CH3 is the methyl group attached to a benzene, so it is called as the methyl benzene, but very commonly it is called as a toluene. Then benzene ring with alternate double bond, PR, so it is called as a bromobenzene. It is called as a bromobenzene. So benzene, methyl benzene, and bromobenzene. One more example, two more example I will take. Benzene ring. What is benzene ring? 6-member ring, hexagonal ring with alternate double bond, and then here we'll have here OH, which is called as a phenol, and this is a benzene ring attached to another benzene ring with alternate double bond, and this is called as a naphthalene. So these are the examples of aromatic. So what are the examples of aromatic compound? We are having benzene, methyl benzene,
bromobenzene, then we are having here phenol. देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए मिथाइल बेंजीन, उसे हम लोग और कॉमनली क्या बोलते हैं, टॉल्यूल. यहाँ पे बेंजीन अटैच टू Br, तो we are having it is called as the bromobenzene, and phenol attached to OH, so benzene ring attached to OH, so it is called as the phenol, and this is called as a naphthalene. This is called as a naphthalene. Okay. Now I'll go for the next heading. Distinguish between aromatic and aliphatic compound. The aromatic और aliphatic के बीच में distinguish करें. तो जो हमारे alkane है, see here, alkane, alkene, alkynes, this type of the organic compounds are called as aliphatic. Whereas the benzene ring compounds are called as aromatic. So alkanes and alkyne, they are called as aliphatic compound. And benzene ring containing compound are called as aromatic. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है between aliphatic and aromatic. The aliphatic और aromatic में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है? So that difference we'll see here. Aromatic compounds and aliphatic compounds. Aromatic and aliphatic compound. Okay. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या आगे देखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक. एरोमेटिक और एलोपैथिक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिस्टिंग्विश? फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर रिटन हियर. द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक मतलब कौन से? देखो एक बार वापस देखो. एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग कंपाउंड, जिनके अंदर बेंजीन रिंग है. और एलिफेटिक का मतलब अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस है, ये एलिफेटिक है. तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करेंगे? दे कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब इनके अंदर कार्बन का कंटेंट हमेशा ज्यादा रहेगा. एंड एलिफैटिक कंपाउंड कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, इतना इनके अंदर कार्बन कंटेंट लो रहेगा. सो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, whereas the aliphatic compound contains the low percentage of carbon. Second point, aromatic compound burn with sooty flame. Sooty मतलब येलो कलर फ्लेम. अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड को अगर बर्न करोगे तो दे बर्न विद सूटी फ्लेम, येलो कलर फ्लेम, whereas this compound burns with non-sooty, येलो कलर फ्लेम. अपना जो घर में गैस है, कौन से कलर का फ्लेम से जलता है? ब्लू कलर. नॉन सूटी मतलब ब्लू कलर फ्लेम, एंड दे बर्न विद सूटी मतलब येलो ऑरेंज कलर फ्लेम. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद द सूटी फ्लेम and they burn with non-sooty flame. Next, aromatic compounds are what? Aromatic compounds are cyclic compound. They are cyclic compound with alternate single and double bond. They are cyclic compound with alternate single and double bond, whereas aliphatic are, they are open chain compound. Open chain मतलब हमें long chain मिलेगा, 1 2 3 4 open chain compound मिलेगा.
यहाँ मिलेगा रिंग विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल. देन एरोमेटिक कंपाउंड they do not undergo addition reaction. मतलब इनका एडिशन रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा. they do not reaction होता है. हम लोग आगे वाले कंसेप्ट लेंगे. अभी क्या ध्यान में रखना है, addition reaction easily, but they prefer which reaction? Substitution reaction. मतलब aromatic hydrocarbon will not undergo addition reaction, but they will show substitution reaction. Correct. अभी यहाँ पे क्या हुआ, एलिफैटिक में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स है? अल्केन. तो अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड. अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अल्कीन्स contain carbon carbon double bond. Alkynes contain carbon carbon triple bond, and we call them as the unsaturated. यहाँ पे क्या हुआ, अल्केन्स सैचुरेटेड है, अल्केन्स एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड है. तो जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन. मतलब अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड रहेगा तो विल अंडरगो रिएक्शन एडिशन, और सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, एडिशन भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है. लेकिन एडिशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? अनसैचुरेटेड. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? सैचुरेटेड. यहाँ पे डिफरेंस क्या था देखो, एरोमेटिक डू नॉट अंडरगो एडिशन बट दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एलिफैटिक में क्या है, अनसैचुरेटेड विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. कैसे हम लोग आगे देखेंगे. unsaturated undergoes addition reaction, whereas saturated undergoes saturated under the substitution reaction. Okay, ये हमारा between aromatic and aliphatic. I'll go for the next. Yes, we start with benzene. What is the benzene here? Benzene, the molecular formula of benzene is C6H6. Molecular formula of the benzene is C6H6. Correct. Molecular formula of benzene is C6. The benzene contains 6 carbon and 6 hydrogen atoms. That is the molecular formula. Second, benzene is the parent compound of all aromatic compound. मतलब बेंजीन इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल एरोमेटिक. आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर लोगे तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा? बेंजीन दिखाई देगा. तो बेंजीन इज द पेरेंट. Benzene is the parent compound of all aromatic compounds. Benzene is the parent compound of all aromatic compounds. Correct? Third,
coal tar and petroleum are the two large scale sources of benzene. The benzene हमें ज्यादा कहाँ से कहाँ मिलेगा? बेंजीन हमें मिलेगा कोल टार से मिलेगा, कोल टार एंड पेट्रोलियम से मिलेगा. सो कोल टार and petroleum are the two large scale sources of benzene. Coal tar and petroleum are the two large scale sources of benzene. ये हमारे दो main sources है, correct? Okay. Coal tar and petroleum are the large scale sources of benzene. और यहाँ पे नोट मेंशन करता हूँ, नोट benzene is originally called as फीन. द बेंजीन का पहला नाम क्या था? फीन था. बेंजीन का पहला नाम क्या था? फीन था. एंड हेंस C6H5. देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6. एक हाइड्रोजन कम लिखा तो C6H5 कॉल्ड एज अ, जैसे मीथेन को बोलते हैं मिथाइल, जैसे बेंजीन को नाम क्या है? फीन. और फीन को आप क्या बोलोगे? फिनाइल. फीन can be called as a phenyl. Okay, so just a note here that benzene is originally called as a phen. मतलब बेंजीन का पहला नाम क्या था? फीन था. तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या था? C6H6 था. अगर एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या मिलेगा? C6H5 करोगे तो क्या? C6H5 and C6H5 is called as a phenyl. It is called as a phenyl. C6H5 is called as a phenyl. Okay. Phenyl. We'll go for the next heading. What are the properties you've seen here? The molecular formula of the benzene is C6H6. Benzene is the parent compound of all aromatic compound. The benzene आपको सब aromatic compound में पाया जाएगा. Coal tar and petroleum are the two large scale sources of the benzene, and benzene is originally called as a phene, and hence C6H5 is called as a phene. आगे आपको ध्यान लगेगा. C6H5 dash is called as a phenyl. It's called as a phenyl group. Okay. Okay, now I'll go for the next heading. That is structure of benzene. The next is structure of benzene. Now what is structure of benzene here? I can say right here, benzene has a cyclic planar ring of 6 carbon atoms. Benzene has a cyclic planar ring of 6 carbon atoms with alternate single and double bond and hydrogen atom
attached to each carbon atom. I'll repeat again. Benzene has a cyclic planar ring, like ring. Ring with how many carbon atoms? 6 carbon atom with alternate single and double bond. With alternate single and double bond and hydrogen atom attached to the carbon atom. तो कैसे स्ट्रक्चर आएगा देखो 1 2 3 4 5 6. So benzene has a cyclic planar ring. एक रिंग है 6 कार्बन आइटम का रिंग है with alternate single and double bond. यहाँ पे double single double single double and then hydrogen atom attached to the each carbon atom. हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम. तो कैसे होगा? यहाँ पे कितने वैलेंसी है देखो. इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 4. 1 2 3 ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स आते हैं तो लिख 4. 1 2 3 3 बॉन्ड्स आते हैं सो H. 1 2 3 बॉन्ड्स आते हैं सो 4. 1 2 3 so it is 4. 1 2 3 so it is a 4. ये हमारा बेंजीन. बट यूजुअली benzene is written as what? A hexagonal ring with alternate डबल बॉन्ड. कहाँ पे भी लिख सकते हो? ऑल्टरनेट होना चाहिए. मतलब ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है. बट सर हर बार हम लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो आप? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ लिख सकते हो और यहाँ पे भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ लिख सकते हो. करेक्ट. ऐसे लिख सकते हो. और बेंजीन रिंग विथ स्मॉल सर्कल इनसाइड ऐसे भी लिख सकते. either you can write a benzene ring with alternate double bond और आप लिख सकते हो बेंजीन रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है. और यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज बेंजीन विथ अ स्मॉल सर्कल इनसाइड द रिंग. स्मॉल सर्कल इनसाइड द रिंग. ओके, ऐसे भी चलेगा. तो इस तरह से आप बेंजीन स्ट्रक्चर लिख सकते हो. एक मिनट. आप सिंगल स्ट्रक्चर भी ऐसे लिख सकते हो और बेंजीन रिंग विथ dotted circle भी दिखा सकते. So either you can draw a complete structure or you can draw this way. So these are the different ways by which benzene structure can be represented. The different ways by which benzene structure can be represented. Correct. So we have done with the structure of benzene. Now I'll go for the next heading. Next heading we are having here methods of preparation of benzene.
मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन कैसे बनाना है, कौन कौन से मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द बेंजीन फ्रॉम इथाइन, and ethine very commonly called as acetylene. Methods of preparation of the benzene, में बेंजीन बनाना है, किससे बनाना है, from ethine, and ethine is called as what, acetylene. Ethine is called as what, acetylene. कैसे बनाओगे, I'll just write down here. Ethine when pass through, ethine when pass through a red hot iron tube, red hot iron tube at 873 Kelvin undergoes trimerization, undergoes trimerization to form बेंजीन। देखो देखो क्या प्रिपरेशन है, इथाइन, मतलब जब इथाइन को आप क्या करोगे, पास करोगे थ्रू रेड हॉट आयन, रेड हॉट आयन के अंदर से पास, मतलब आयन ट्यूब रहेगा, और आयन ट्यूब को कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, 873 पे। यहाँ पे अगर ये हमारा आयन ट्यूब है, ये हमारा आयन ट्यूब है, और ट्यूब का टेम्परेचर कितना रहेगा, 873 केल्विन रहेगा, और यहाँ से क्या पास करोगे, इथाइन पास करोगे, तो हमें यहाँ पे बाहर क्या मिलेगा, बेंजीन। मतलब इथाइन को अगर हम लोगों ने रेड हॉट, इथाइन को अगर हम लोगों ने ETHYN, इथाइन को अगर हमने रेड हॉट आयन ट्यूब से अगर पास कर दिया, और कितने टेम्परेचर पे, 873 केल्विन पे, तो हमें बाहर कौन सा गैस मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, हमें यहाँ पे बेंजीन मिलेगा। तो इथाइन अगर हम लोग ने रेड हॉट ट्यूब से अगर पास कर दिया, बाहर आने वाला गैस कौन सा रहेगा, बेंजीन रहेगा, क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। ओके, तो अब रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो इथाइन, इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऐसे लिखूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक 3 अलग अलग मॉलिक्यूल है, and they are called as a ethine. Very commonly they are called as a acetyl. IUPAC name is ethine and common name is acetyl. When this is passed through red hot iron tube, when this is passed through red hot iron tube at 873 Kelvin, this is passed through red hot iron tube at 873 Kelvin. क्या होगा देखो, when it is passed through red hot iron tube at 873 Kelvin, ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इनसे डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो थोड़ा लर्न करने के लिए इजी होगा। डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर बेंजीन रिंग मिलेगा। अब डायरेक्टली भी लिख सकते, बेंजीन रिंग मिलेगा विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये हमारा डायरेक्ट बना बेंजीन। मतलब अगर हम लोगों ने एसिड इथाइन गैस को रेड हॉट आयन ट्यूब के अंदर से अगर पास कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। ओके, ये बेंजीन, ये प्रिपरेशन हो गया हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम
sodium benzoate, and the method is called as what? By decarboxylation. बाय डीकार्बोक्सिलेशन हमें किससे बनाना है? बेंजीन किससे बनाना है? अभी सोडियम बेंजोएट से बनाना है। बेंजीन किससे बनाना है? सोडियम बेंजोएट से बनाना है। बाय विच मेथड? डीकार्बोक्सिलेशन। तो कैसे होगा यहाँ पे? व्हेन अनहाइड्रस sodium benzoate is heated with soda lime, it forms benzene. It forms benzene. देखो क्या लिखा मैंने? When anhydrous sodium benzoate, ये हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट को हीट करोगे इसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। सोडियम बेंजोएट को अगर सोडा लाइम के साथ अगर हीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। ओके, तो इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन रिएक्शन क्या आएगा? देखो, सोडियम बेंजोएट का बेंजीन रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन। दिस इज, आपको लर्न करना पड़ेगा। सोडियम बेंजोएट NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इनके साथ हीट करेंगे और इनको मिक्सचर इनके साथ हीट करना है। एंड NaOH and calcium oxide together are called as soda lime. उन्होंने क्या बोला था? सोडियम बेंजोएट को हीट करना है। किसका हीट करना है? सोडियम बेंजोएट को हीट करना है। किसका हीट करना है? सोडा लाइम के साथ। और सोडा लाइम का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ NaOH, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। और हीट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग। डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बेंजीन रिंग ऑल्टरनेट डबल, बेंजीन रिंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? Na एंड Na, तो क्या बनेगा? Na2, कार्बन 1, तो कार्बन 1, CO1 2 एंड 3, CO3, यहाँ पे मिलेगा CO3 which is called as sodium carbonate, which is called as a sodium carbonate। तो क्या देखा? देखो यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम बेंजोएट अगर सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा, और प्लस का मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ये हमारा सेकेंड प्रिपरेशन। तो सोडियम बेंजोएट से क्या मिल रहा है? बेंजीन मिल रहा है। कभी? जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करोगे? हीट करोगे। ओके, और अभी हमारा थर्ड, द लास्ट प्रिपरेशन फॉर द डे, फ्रॉम phenol, from phenol by reduction. From phenol by reduction, what is here? When vapors of phenol are passed over heated
zinc dust, it forms benzene. ओके, मतलब अगर हम लोगों ने फिनॉल, तो फिनॉल है, इन फिनॉल के क्या लेंगे, वेपर्स लेंगे, और किसके ऊपर पास करेंगे, जिंक डस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, बेंजीन मिलेगा। मतलब अगर हम लोगों ने फिनॉल वेपर्स जिंक डस्ट में से अगर पास कर दिए तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। सो फिनॉल वेपर्स when passed through a zinc dust we will get the benzene, हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। करेक्ट। और रिएक्शन देखो, फिनॉल OH, ये हमारा फिनॉल है, रिएक्ट विद द जिंक, जिंक मतलब जिंक डस्ट, हीट करेंगे और हमें मिलेगा बेंजीन। ये H यहाँ पे चला जाएगा और Zn और साथ में आएगा, क्या मिलेगा, ZnO। ZnO is called as zinc oxide. So phenol react with the zinc, phenol react with the zinc dust, phenol react with the zinc dust, और हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन, और हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड। बेंजीन और हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, तो हमने 3 प्रिपरेशन देखे। सबसे पहला वाला प्रिपरेशन क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन फ्रॉम इथाइन। तो इसमें क्या हो रहा था, इथाइन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हम लोगों ने, 3 मॉलिक्यूल्स, 1 2 3। उसमें क्या कर रहे हैं, रेड हॉट आयन ट्यूब से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। दूसरा मेथड क्या था, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट को हम लोग हीट करे थे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो क्या मिला, बेंजीन मिला। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करा तो क्या मिला, बेंजीन। तीसरा फिनॉल, फिनॉल में क्या ऐड कर दिया, जिंक डस्ट ऐड कर दिया, तो फिनॉल का क्या हो गया, फिनॉल का रिडक्शन हो गया और हमें क्या मिला, बेंजीन। फिनॉल में जिंक डस्ट ऐड कर दिया तो हमें बेंजीन मिला और ये जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारे थे प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। Okay, preparation of the phenol. So we'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next lecture. Okay, thank you.